reaction esterification reaction. Here esterification means formation of ester when carboxylic acid heated with alcohol in the presence of concentrated sulfuric acid to form ester. This reaction is called esterification. This reaction is very important for exam 2 marks example of general reaction. So see here general reaction. First general reaction, here this is a general formula or generally represented as a carboxylic acid. Name of this compound is carboxylic acid is heated with alcohol OH. This is a आप यहाँ पे R डैश ले सकते हैं ना, डिफरेंट दोनों सेम लिखा है. Heated concentrated sulfuric acid means H2SO4 removal of water molecule. This hydrogen and this OH removal of water, we get the product is RC double bond O, oxygen bond R dash plus removal of this hydrogen and this OH, removal of H2O. This is a ester. Okay, this is a general reaction. Now example, reaction between acetic acid and ethyl alcohol. See here name is alcohol. Then example, this is a acetic acid. This R is replaced by methyl group. Name is acetic acid plus ethyl alcohol CH2 CH3. Around the heat as it is concentrated H2 SO4. Here this hydrogen atom and this OH removal of water molecule, we get the product is CH3 C double bond O oxygen. Then this hydrogen and this OH removal of water molecule remaining as CH2 CH3 plus H2O. Name of this compound is ethyl acetate. Name of this compound is ethyl acetate. Here ethyl alcohol. Name of this compound is ethyl alcohol. In this way, formation of ester, reaction between acetic acid and ethyl alcohol. ये आपको 2 मार्क ले क्वेश्चन रहेगा. एक तो जनरल रिएक्शन रहेगा, नहीं तो ये एग्जांपल रहेगा. 2 मार्क्स ले रहता है. नेक्स्ट with acetic anhydride, when alcohol react with acetic anhydride to form ester. See here reaction when acetic anhydride CH3 C double bond O oxygen C double bond O CH3. This is a formula of acidic anhydride. This is the formula of acetic anhydride is react with ethyl alcohol in the presence of pyridine. Here this bond shift here. आपने आयोनाइज किया इथाइल अल्कोहल का तो आपको मिलेगा C2H5OH. आयोनाइज करने के बाद C2H5 O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव और एसिटिक एनाइड्राइड है CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड CH3. आपने ये आयोनाइज किया, यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा. आयोनाइज किया तो क्या मिलेगा आपको CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव. आपको ये आयोनाइज मिलेगा.
अल्कोहल का किया तो क्या मिलेगा C2H5 O निगेटिव H पॉझिटिव्ह. यार एसिटिक अनहाइड्राइड बॉन्ड शिफ्ट होईल या ठिकाणी. तर इथे काय मिळणार CH3CO पॉझिटिव्ह CH3C डबल बॉन्ड O निगेटिव्ह. Simple reaction. This O negative and this H positive formation of acetic acid and this carbon positive and this oxygen negative formation of ester. We get the product C here. CH3 C double bond O positive and this oxygen negative means O C2H5 plus acetic acid OH. This is acetic acid. Name of this compound is ethyl acetate. This one is a ethyl alcohol. ये हो गया with acetic anhydride. Another example with acid chloride. कहाँ से एसिड क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड O Cl. इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड. एसिड क्लोराइड एसिटिल क्लोराइड और असाइल क्लोराइड तीन नाम है उसके. अब यहाँ पे अल्कोहल ले लो C2H5. दिस इज इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine. सिंपल है. दिस क्लोरीन and this hydrogen removal of HCl bond formation. Cl product is CH3 C double bond O C2H5 plus removal of HCl. तो यहाँ पे इसका भी नाम क्या रहेगा ethyl acetate. Your name is ethyl alcohol. This is a formation of ester. पहला esterification general reaction example. Then with acetic anhydride with acetic chloride formation of ester ethyl acetate. This is a reaction. This reaction does not ask for exam. Okay, ये आपको एग्जाम को नहीं रहेगा. इम्पोर्टेंट रहेगा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जनरल रिएक्शन. और जो पहला वाला एग्जांपल था वो एग्जाम को रहता है. ये दोनों क्या नहीं रहते. ओके, नेक्स्ट. अब नेक्स्ट रिएक्शन फिनॉल. When salicylic acid react with acetic anhydride in the presence of concentrated sulfuric acid to form aspirin. ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. 2 मार्क्स ले रहता है. सी सिंपल रिएक्शन है फिनॉल. दिस इज अ salicylic acid. Salicylic acid react with, आपको रिएक्ट करना है एसिटिक अनहाइड्राइड से. एसिटिक अनहाइड्राइड in the presence of concentrated sulfuric acid. In the presence of concentrated sulfuric acid H2SO4. अभी आपको आयनाइजेशन बताया था एसिटिक अनहाइड्राइड का. और यहाँ पे एसिटिक अनहाइड्राइड आयनाइज कैसे लेगा CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव. जैसे यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ये तो ये फॉर्म हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव. कार्बन पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पे रिएक्शन होता है O नेगेटिव H पॉजिटिव रहता है. यहाँ पे कुछ भी नहीं होता. तो ये H पॉजिटिव और CH3CO O नेगेटिव मींस फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड. जो कार्बन पॉजिटिव है तो यहाँ पे अटैक हो जाएगा. अब प्रोडक्ट देखो यहाँ पे क्या आएगा acid as it is, oxygen
बाय प्रोडक्ट आएगा एसिटिक ओ निगेटिव और H, मतलब यहाँ पे आएगा एसिटिक एसिड, इसका नाम एसिटिक एसिड और इसे हम बोल सकते हैं एस्प्रिन। और अनदर नेम इज एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज एस्प्रिन, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। एस्प्रिन का नाम क्या है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। देखो यहाँ पे दिस इज सैलिसिलिक एसिड, इसका नाम क्या है एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड। तो यहाँ पे H रिप्लेस होके COCH3 अटैच हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग एज इतना ही चेंज होता है ये रिएक्शन में। ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको 2 मार्क्स ले एग्जाम में रहेगा। ओके, नेक्स्ट reaction involving cleavage of carbon oxygen bond in alcohols। reaction involving cleavage of मतलब आपको कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करना है, कहाँ से, अल्कोहल में। तो यहाँ पे फर्स्ट है लुकास रिएजन, दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट लुकास। हियर a mixture of concentrated, Lucas reagent means a mixture of concentrated HCl means hydrochloric acid and anhydrous ZnCl2 means zinc chloride। आपको एक मार्क्स ले क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज लुकास रिएजन, अ मिक्सचर ऑफ concentrated हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। और ऐसे लिख सकते हैं आप मिक्सचर ऑफ concentrated HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl। ओके, फॉर एग्जांपल हियर, फॉर एग्जांपल when alcohol, this is a generally representation of alcohol. When alcohol react with Lucas reagent HCl in the presence of anhydrous ZnCl2, we get the product is here this OH and this hydrogen, a removal of water molecule and formation of alkyl chloride, here RCl plus removal of H2O. Name of this compound is alkyl chloride. This is a alcohol. This one is a alcohol. When Lucas reagent react with alcohols to form alkyl chloride. The next point is observations. In observation, there are 3 alcohols, primary, secondary and tertiary alcohols। जब हम जो लुकास रिएजेंट है हम प्राइमरी अल्कोहल से रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है, सेकेंडरी से क्या करेंगे, रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, और टर्शियरी से करने से क्या होता है वो देखना है। तो फर्स्ट वन विथ प्राइमरी अल्कोहल, with primary alcohol, in this primary alcohol no turbidity appear, primary alcohol no turbidity appear, it appears on heating। जब हमने लुकास रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल से रिएक्ट किया तो वहां पे क्या होता है, नो टर्बिडिटी नहीं आएगा,
हीटिंग। कब आएगा टर्बिडिटी? जब आप हीट करेंगे तो वहां पे टर्बिडिटी आता है। ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल के साथ। देन नेक्स्ट this is a with primary alcohol, no turbidity appear, it appears on heating. Of second observation, with secondary alcohol, आपने लुकास रिएजेंट सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया तो क्या मिलेगा? टर्बिडिटी appears after 5 minutes. यहाँ पे क्या होता है? जब सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो वहां पे क्या रहेगा? टर्बिडिटी अपीयर होगा। कब होगा? आफ्टर 5 minutes. एंड लास्ट वन with टर्शरी अल्कोहल। अब थर्ड क्या होगा? टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल के साथ आपने लुकास रिएक्ट किया तो वहां पे टर्बिडिटी क्या मिलता है? इमीडिएटली टर्बिडिटी मिलता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? टर्बिडिटी अपीयर्स with tertiary alcohol immediately. With tertiary alcohol. Here अब देखो यहाँ पे सिंपल है, ये भी आपको 3 मार्क्स ले क्वेश्चन रहेगा। With primary alcohol, first what is Lucas reagent? Lucas reagent मतलब a mixture of concentrated hydrochloric acid and anhydrous zinc chloride. Generally reaction, for example, alcohol react with Lucas reagent to form alkyl chloride. Here ROH plus HCl. This OH and this hydrogen removal of water molecule, and this R and this Cl removal of RCl means alkyl chloride. Then this Lucas reagent react with primary, secondary and tertiary alcohol. आपने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया तो क्या होता? समझो आपने ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट विद प्राइमरी अल्कोहल, वहां पे क्या होता है? नो टर्बिडिटी अपीयर, इट अपीयर ओनली ऑन हीटिंग। जब आप हीट करेंगे तभी टर्बिडिटी यहाँ पे आ जाएगी। सेकेंड वन विथ सेकेंडरी अल्कोहल, वहां पे टर्बिडिटी अपीयर आफ्टर 5 मिनट्स। मतलब यहाँ पे जब अपने सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट किया लुकास रिएजेंट के साथ तो आपको टर्बिडिटी मिलेगी आफ्टर 5 मिनट के बाद। अब लास्ट हो गया टर्शियरी अल्कोहल, टर्बिडिटी अपीयर इमीडिएटली। मतलब हम इस रिएजेंट से वो अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये रिएजेंट से हम क्या कर सकते हैं? ये रिएक्ट करने के बाद प्राइमरी होगा तो टर्बिडिटी नहीं आएगा, सेकेंडरी होगा तो आफ्टर 5 मिनट्स के बाद आएगा, और टर्शियरी होगा तो इमीडिएटली आएगा। इससे हम क्या फाइंड आउट और क्या हो सकता है? ये अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शियरी है, ये हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दिस इज अ लुकास रिएजेंट, दिस इज अ ऑब्जर्वेशंस इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। अब नेक्स्ट डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ H2O वाटर मॉलिक्यूल। आपको पहले बेसिक में बताया मैंने आपको, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? वाटर रिमूव करना। तो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया
और ऑर्थोफॉस्फरस एसिड के साथ हीट किया तो वाटर निकल जाता है, कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो देखना है। तो फर्स्ट प्राइमरी अल्कोहल, पहला कौन सा है? प्राइमरी अल्कोहल। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 OH, हम हीट करेंगे उसको, कॉन्सेंट्रेटेड हीट करना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट अबाउट टेम्परेचर 443 केल्विन टेम्परेचर है, आपको हीट करना है। तो सिंपल है, हीट करने बाद ये निकल जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, AH पॉजिटिव एंड दिस OH नेगेटिव, रिमूवल ऑफ वाटर, you get the product is CH2 double bond CH2 plus H2O. Name of this compound is ethene. This is a ethyl alcohol. And primary alcohol is heated with concentrated sulfuric acid at about temperature 443 to form ethene and removal of water molecule. Then next here number 2, secondary alcohol. Secondary alcohol. For example, the example कौन सा है यहाँ पे? Here CH3 CH OH CH2H, इसका नाम है आइसोप्रोपीन अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल, ओके, is heated with S3PO3, one minute, sorry, S3PO4 440 केल्विन टेम्परेचर आपको ये हीट करना है। हीट करने के बाद यहाँ पे OH निकल जाएगा, OH नेगेटिव, वो बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, दिस H पॉजिटिव एंड दिस OH नेगेटिव, removal of water and here formation of double bond. We get the product is here CH3 CH double bond CH2 plus removal of H2O. Name is propene. Name of this compound is propene. This is a secondary alcohol. And last tertiary alcohol. Last one, tertiary alcohol. For example, CH3 OH, here CH3. This is a tertiary butyl alcohol. This one is a tertiary butyl alcohol. Is heated with S3PO4, temperature 358 Kelvin. अब यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये निकल जाएगा, तो आपको मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 नीचे वाला, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 आएगा, तो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 प्लस रिमूवल ऑफ H2। अब इसका नाम लिखना है 1 2 और 3, नाम आएगा 2-methyl propene. This is a dehydration reaction for primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol. ये तीनों में से कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड ही कंपाउंड फॉर्म होता है, मीन्स E डबल बॉन्ड
देन नेक्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म है डिहाइड्रेशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. सी फर्स्ट व्हेन इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH is heated with concentrated H2SO4, product is CH2 double bond CH2 plus removal of H2O, removal of H2O, ये रिएक्शन होगा. अब यहाँ पे मैकेनिज्म, दिस मैकेनिज्म as for exam 3 मार्क्स. ये जो मैकेनिज्म है आपको एग्जाम में 3 मार्क्स में रहेगा. इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है, ईयरली रहेगा, आपको भी फाइनल एग्जाम में और मिड टर्म रहेगा, प्रिपरेटरी रहेगा, बस इसमें ये रहेगा मैकेनिज्म. सिंपल मैकेनिज्म है. इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स. ये मैकेनिज्म में कितना स्टेप है, 3 स्टेप है. फर्स्ट स्टेप 1, पहला जो स्टेप है, स्टेप फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल. फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल. पहला स्टेप में क्या करना है आपको, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल मींस एडिशन ऑफ प्रोटॉन और अल्कोहल. आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड का आपने आयोनाइज किया, H2SO4 का आयोनाइज किया तो आपको क्या मिलेगा, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव मिलता है. ओके, अब यहाँ पे पहला स्टेप देखो. स्टेप 1, दिस इज इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH, oxygen possess lone pair of electron plus H positive. This proton attack on lone pair of oxygen atom. Oxygen possess positive charge, means formation of oxonium ion or also called protonated alcohol. Here CH3 CH2OH 2 positive. इसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल. यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोल सकते हैं. इसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल. अब स्टेप 2, this protonated alcohol lose water molecule to form carbocation, to form ethyl carbocation. Here in step 2, CH3 CH2OH2 positive, यही लिया यहाँ पे. अब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ कार्बन से, तो ये कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, मतलब CH3 CH2 positive plus removal of H2O. This is a ethyl carbocation. This one is a ethyl carbocation. This is a protonated alcohol, where protonated alcohol lose water molecule to form ethyl carbocation. अब last step, third step, step 3. यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन. डीप्रोटोनेशन मतलब रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम इथाइल कार्बोकेटाइन. सी हाइड्रोजन CH2 पॉजिटिव. ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंट है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है और ये H पॉजिटिव निकल जाएगा. मतलब क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 प्लस रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव. दिस इज अ इथीन.
अजून काय आलं डबल बॉन्ड. दिस इज अ 3 स्टेप मैकेनिज्म. आपको ये मैकेनिज्म है पहला स्टेप, ये दूसरा और ये तीसरा स्टेप है. वेरी इंपॉर्टेंट आज फॉर एग्जाम. एग्जाम को आपको ये इम्पोर्टेंट है, करना चाहिए, इजी है. ओके